کلام ہو ہم سب کے لیے پاک خدا ایسا ہو جو ہماری زندگی ہماری سوچیں ہمارے خیالات تبدیل ہو اور پاک خدا ابلیس ہمارے گھروں سے ہماری کلیسیوں میں دور ہو اور پاک خدا آج جب کلام کھلے پاک خدا جوئے بندر ٹوٹے بیماری جاتی رہے اور بدروگ گرفتار لوگ آزاد ہوں بیمار شفا پائے اور آپ کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے پاک خدا آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے خادم کے لیے خدا کے کلام کے لیے میں چاہوں گا بھائی اشفاق آئیں گے دعا میں رہنمائی کریں گے پیارے آسمانی باپ یسوع مسیح ناصری کے پاک نام میں تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تو موجود ہے تیرا مسا تیری حضوری کے لیے تیری زندہ آواز کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خدا میں تو اپنے بندوں کے درمیان ہے آج اپنے خادم کو استعمال کرنا اپنے جلال کے لیے آج کا کلام خداوند ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو نجات ہو خداوند زور پکڑے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اپنے خادم کو چھونا اور بڑی برکت دینا یسوع کے نام میں آمین۔ اب ہم خدا کے کلام کو اور خدا کے خادم کو ویلکم کریں گے اور کلیپنگ کے ساتھ خدا کے کلام کو مانگ لیں خدا کے خادم کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جو ہمارے درمیان خدا کے کلام کو لے کر آئے۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ بائبل مقدس کا ایک واقعہ ہے، ہوسیہ نبی نے ایک ممبر تیار کیا، ممبر کہا جاتا ہے پلپٹ۔ ہوسیہ نبی نے ایک ممبر تیار کیا اور ممبر تیار کرنے کے بعد اس نے قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو بلایا اور جب اس نے قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو بلایا تو اس نے کہا کہ خداوند کی تعریف ہو۔ تو قوم بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا آمین۔ ہاللویا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا آمین۔ ہاللویا ہاللویا۔ جی جو ایک ہاتھ کو کھڑا کر رہا ہے نا وہ یہ نہ بولے کہ اس کا دوسرا بھی ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں آمین۔ میں ہاللویا بولوں گا، آپ نے کہنا آمین۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ یوحنا عارف نے آسمان پر ایک بڑی بھیڑ کو دیکھا اور اس نے دیکھا کیا؟ اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں ہیں اور وہ بغیر آرام کیے کیا کہتے ہیں؟ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ اور بزرگ اپنے تختوں پر سے اٹھتے ہیں اور زمین پر جھک کر برا کے سامنے سجدہ کرتے اور کہتے ہیں آمین۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں، بھائی جارج کے ساتھ کافی دیر کے بعد ملاقات ہوئی تو خدا نے گرین ٹاؤن کے اندر بڑے زبردست سرماؤں کو کھڑا کیا ہوا ہے جو خدا کی خدمت طرح طرح سے کر رہے ہیں، ورشپ کے تھرو اور ورڈ آف گاڈ شیئرنگ کے تھرو، اور طرح طرح سے خدا اپنے خادموں کو استعمال کر رہا ہے۔ گرین ٹاؤن میں بہت سے خادم ہیں جو بڑے زبردست خادم ہیں۔ ہاللویا۔ تو کلام مقدس میں مکاشفہ 2 باب میں لکھا ہے کہ خداوند جو اپنے ہاتھوں میں ستاروں کو لیے ہوئے ہیں، جی کیا لکھا ہے؟ خداوند جو اپنے ہاتھوں میں ستاروں کو لیے ہوئے ہیں۔ کہیں خداوند ستاروں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، کہیں اور کہیں یہ ستارے پتہ کون ہے؟ کہیں میں ستارہ ہوں، زور سے کہیں گے میں ستارہ ہوں، میں مسیح کا ستارہ ہوں، میں مسیح کا ستارہ ہوں۔ ہاللویا ہاللویا۔ آپ کو پتا ہے ستارے چمکتے کیسے ہیں؟ جی کسی کو پتا ہے ستارے روشنی کہاں سے لیتے ہیں؟ جب آفتاب چمکتا ہے تو آفتاب سے چاند جو ہے وہ روشنی کو لیتا ہے، اور چاند اور ستارے سورج سے روشنی کو لیتے اور چمکتے اور دمکتے ہیں، اور ان کا مالک کون ہے؟ ان کو اجرام فلک کے اندر لگانے والا، تعمیر کرنے والا، وجود میں لانے والا میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ بتانا چاہتا ہوں کہ جب نئے اکبر نئے اصغر کو بنایا نہیں گیا تھا تو خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، روشنی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ کس کے سبب سے ہوئی؟ یہ کسی اور کے سبب سے نہیں ہوئی،
یہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کے منہ کی، اس کے چہرے کی تجلی کے سبب سے ہوئی۔ ہاللیلویا۔ سو آج خداوند یسوع مسیح نے زمینی خدمت کے اندر اپنے شاگردوں کو بڑے زبردست طور پر کہا۔ اس نے کہا کہ تم زمین کے کیا ہو؟ نمک ہو۔ اور اس نے کہا کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے گا تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے؟ پھر وہ پیروں میں روندا جائے۔ پھر اس نے کہا کہ تم دنیا کے کیا ہو؟ نور ہو۔ تم دنیا کے تم دنیا کے آئیے ایک دوسرے سے کہے تم دنیا کے نور۔ پھر سے 3 مرتبہ گئے۔ ہاں تم دنیا کے نور۔ ہاللیلویا۔ تم دنیا کے نور ہو، اور اگر نور کے اندر تاریکی آ جائے گی تو نور کیا ہوگا؟ نور جاتا رہے گا۔ کلام مقدس میں سے آج ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دیکھیں گے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے ہاللیلویا۔ ہم کلام مقدس میں سے آج اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یوسایا نبی کا صحیفہ اور اس کا 60واں باب کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، اور میں درخواست کرتا ہوں بھائی جارج سے کہ وہ پڑھنے میں رہنمائی۔ 60واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم کلام مقدس کو پڑھیں۔ تھینک یو۔ یسایہ کی کتاب اس کا 60 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا گئی اور ٹہر گئی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر تسلط ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ اس کو ایک بار پھر ہم پڑھیں گے۔ اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھائے گی اور تیر گی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر تسلط ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زوردار تالی۔ ہاللیلویا۔ زوردار تالی۔ بچوں آپ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ آئیے ایک دوسرے سے کہیں اٹھ اور منور ہو۔ اٹھ اور منور ہو۔ اٹھ اور منور ہو۔ کلام مقدس میں پیدائش میں جب خدا نے زمین و آسمان کو بنایا تو خدا نے تاریکی کو نور سے جدا کیا۔ کیا کیا؟ تاریکی کو نور سے جدا کیا۔ اب جس چیز کو خدا جدا کر دیتا ہے یا جس چیز کو خدا ملا دیتا ہے، ملائی ہوئی چیز کو کوئی جدا نہیں کر سکتا اور جدا کی ہوئی چیز کو کوئی ملا نہیں سکتا۔ آمین۔ متی کی انجیل میں 5ویں باب کے اندر جب شادی کے بارے میں سوال کیا گیا خدا یسوع مسیح کو، تو اس نے کہا کہ جن کو خدا نے جوڑا ہے ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کے اپوزٹ اگر ہم جائیں تو اگر خدا جس کو جدا کر دیتا ہے تو اس کو کوئی ملا نہیں۔ آمین۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ تاریکی میں نور چمکا لیکن تاریکی نے اسے قبول نہ کیا اور وہ ہمارے درمیان رہا اور اس کا جلال ایسا تھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، تو ہمیں آج کیا کرنا ہے؟ آج ہمیں اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ اگر خدا نے تاریکی کو جدا کیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر سے تاریکی پر نظر کرنی ہے۔ اگر ہمارے دل پر تاریکی چھائی ہوئی ہے تو آج ہمیں اپنے دل پر سے تاریکی کو حکم دینا ہے کہ اے تاریکی کے حاکم، میں تجھے یسوع کے نام میں حکم دیتا ہوں کہ میرے اندر سے بھاگ۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح نے جب اپنی موت کا اظہار کیا، اس نے کہا کہ یہ ہیکل گرائی جائے گی اور میں اسے پھر 3 دن میں کھڑا کروں گا۔ تو پترس نے کیا کہا؟ اس نے کہا خدا نہ کرے کہ وہ دن آئے۔
सो खुदा यीशु मसीह ने कहा ऐ शैतान दूर हो। खुदा कहता है कि तारीकी जुदा रहे, लेकिन हम क्या कहते हैं? नहीं, तारीकी हमारे साथ साथ। आमीन। तारीकी को आज हमने जुदा करना है। खुदा जब कलाम करता है, खुदा जब अपने कलाम को नाजिल करता है, तो ज़बूर 107 में लिखा है कि खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमा के शिफा बख्शता है। आमीन। ये शिफा जिस्मानी शिफा का जिक्र नहीं है ज़बूर 107 में, ये शिफा रूहानी शिफा है। आमीन। इस कलाम मुकद्दस के अंदर जितनी बरकतें हैं, जितनी नेमतें हैं, इन सारी नेमतों से अला नेमत जो है वो रूहानी नेमत। आमीन। रूहानी नेमत को जो शख्स हासिल कर लेता है, क्यों खुदा यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाहत की तलाश करो, तो वो ये सारी चीजें तुम्हें इनाम मिलेगी। हालेलुया। जब खुदा ने जब इब्राहिम को बुलाया, तो इब्राहिम ने अपने बाप के घर से कुछ लिया नहीं था। इब्राहिम खाली हाथ निकला। इब्राहिम का काम क्या था? इब्राहिम का बाप उसके सर पर टोकरा उठा देता और वो कहता कि जा बेटा इन बुतों को सेल करके आ, इन बुतों को बेच के आ। तो इब्राहिम जब छोटा था तो अपने सर पर छोटे बुतों का टोकरा लिए हुए करता क्या था? वो करता यह था, एक बुत को अपने हाथ में लेता और उसको डोरी के साथ बांधता और उसको जमीन पर गिरते हुए जाता और कहता कि उस बुत को खरीद लो जो अपने आप को भी नहीं बचा सकता। लोग कहते थे कि जो बुत अपने आप को नहीं बचा सकता वो हमें क्या बचाएगा? क्यों? क्योंकि इब्राहिम को खुदा ने चुना। इब्राहिम को खुदा की पहचान थी। जैसे यिर्मयाह को खुदा ने कहा कि मैंने इससे पेशतर देख के तू अपने मां के बातन में डाला जाता, मैंने तुझे चुन लिया। और यिर्मयाह कहता है खुदा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, अभी तो मैं छोटा हूं, अभी तो मैं बच्चा हूं, अभी तो मैं बोल नहीं सकता। लेकिन खुदा ने उसे इख्तियार दिया। खुदा ने कहा कि मैं तुझे इख्तियार देता हूं कि तू ढाएगा, तू गिराएगा, और फिर खुदा से कहता है कि मैं तुझे बरकत देता हूं, फिर तू तामीर करेगा और तू लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें ये घबराने की जरूरत नहीं है। आज आप अपने अंदर गौर करें, अपने अंदर निगाह करें और कहें खुदा यीशु मसीह ने मुझे कहा कि तुम दुनिया के नूर। आए कहें खुदा यीशु मसीह ने मुझे कहा है कि तुम दुनिया के नूर। आइए एक दूसरे से कहें तुम दुनिया के नूर। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने अपने हाथों में मुकाशफा 2 में लिखा, अपने हाथों में वो सितारे लिए हुए। अब सितारे आसमान पर चमकते दमकते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं ऐसे भी सितारे हैं जो रोशनी लेते हैं लेकिन वो चमकते नहीं। उन सितारों को क्या कहा जाता है? उनके अंदर एक खोल है, उनके अंदर एक गड्ढा है, और उस गड्ढे के सबब से उनके अंदर तारीकी रहती है। वो रोशनी लेते हैं लेकिन उस गड्ढे के सबब से क्या होता है? वो रोशनी चमक नहीं पाते, उस गड्ढे के अंदर साया रहता है और वो जमीन पर रोशनी नहीं डालते। मत्ती 5 बाब के अंदर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि चिराग कभी भी जलाकर पैमाना के नीचे नहीं रखा जाता। जी, रखा जाता है। अगर हम इस बल्ब को रोशन करें और इसको किसी चीज के नीचे छुपा दें तो क्या ये रोशनी देगा? नहीं। खुदा यीशु मसीह ने कहा चिराग जलाकर पैमाने के ऊपर रखा जाता है ताकि अंदर आने वालों को क्या मिले? रोशनी मिले। तो हमें क्या करना है? हमारे अंदर ये खूबियां नजर आए, हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत नजर आए, हमारे अंदर रूहानी नेमतें नजर आए। अगर हमारे अंदर रूहानी नेमतें नजर आएंगे तो अंदर आने वालों को रोशनी मिलेगी। हालेलुया। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि चिराग को जला के पैमाना के नीचे नहीं रखा जाता बल्कि पैमाना के ऊपर रखा जाता है ताकि अंदर आने वालों को रोशनी मिले। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को, खुदा यीशु मसीह ने कहा यिर्मयाह को पुकारा गया जब, तो कहा कि कौन जाएगा? तो यिर्मयाह बोला मैं हाजिर हूं। हालेलुया। यिर्मयाह ने कहा मैं हाजिर हूं। आज हमें भी कहना है कि मैं हाजिर हूं। हालेलुया। बच्चे कहेंगे मैं हाजिर हूं। खुदा कहता है कौन जाएगा? आए कहे मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। बुलंद आवाज के साथ कहें, बुलंद आवाज के साथ कहें, बुलंद आवाज के साथ कहें, मैं हाजिर हूं।
तुझे डुबोने नहीं पाएंगे। तो आंधियों में से गुजरेगा और वो तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तू शोलों पर से गुजरेगा और वो शोला तुझे ना जलाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ। हालेलुया। यीशु को खुदा ने कहा कि उठ, बेदिल ना हो, क्योंकि मैं तेरे कितनी देर के लिए वो हमारे साथ है? कितनी देर के लिए? क्या उसने कहा कि इश्फाक खौफ न कर, मैं 1 महीने के लिए तेरे साथ? नहीं, उसने ये नहीं कहा कि मैं 1 साल के लिए तेरे साथ। उसने ये नहीं कहा कि मैं 10 साल के लिए, 30 साल के लिए, 100 साल। उसने कहा कि मैं अब से हमेशा तुम्हारे। हालेलुया, हालेलुया। शागिर्दों का दिल उदास हुआ था। जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर जाने लगे तो शागिर्दों के दिलों पर उदासी छा गई। वो सोचने लगे उस्ताद हमारे साथ था, हमसे बुजुर्ग नहीं निकलती थी तो वो निकाल देता था। बीमार अच्छे होते थे, लेकिन अब क्या होगा? शायद हमसे ये काम हो पड़े या ना। खुदा यीशु मसीह ने कहा खौफ न करो, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं बाप के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। अब ये दूसरा जो मददगार है, ये दूसरा मददगार कौन है? जी, दूसरा मददगार जो है, इब्रानी के अंदर जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका जो तर्जमा किया गया है, उसका मतलब है रुख बदलना। क्या मतलब है? रुख बदलना। खुदा यीशु मसीह जमीनी खिदमत के अंदर थे, लोगों ने उसे देखा, लोगों ने उसके कामों को देखा, लोगों ने देखा कि ये अंधों को दिखाता है, ये लंगड़ों को चलाता है, ये मुर्दों को जिंदा करता है। हाँ, यहूदी कहते थे कि ये 1 दिन के मुर्दे को जिंदा करता है, 2 दिन के मुर्दों को नबी जिंदा कर सकते हैं, 3 दिन के मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन उन सब से बढ़कर रुतबा रखने वाला था, उसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया। हाँ, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम तो देखते हो कि लंगड़े चलते, अंधे देखते हैं, लेकिन मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा को यूहन्ना में लिखा है, खुदा को किसी ने भी नहीं देखा। खुदा को किसी ने भी नहीं देखा। आज अगर आपको कोई कह देता है कि जब मैंने खुदा को देखा, तो वो झूठ बोल। खुदा यीशु मसीह भी जब आसमान पर गए तो फकत 4 शख्स थे जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को देखा। पौलुस रसूल ने खुदा यीशु मसीह को देखा और उसकी आंखों ने उसके जलाल को बर्दाश्त ना किया। फिर उसके बाद यूहन्ना आरिफ ने, फिर नौजवान ने खुदा को देखा, खुदा यीशु मसीह को देखा जब उसे पथराव किया जा रहा था और उससे संसार होना था। तो वो खुदा यीशु मसीह को आसमान की तरफ देख रहा और कह रहा है कि खुदा यीशु मसीह मुझे खुद लेने के लिए आ रहा है। यहूदियों को और गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं, इसको और पथराओ, ये कुफर बक रहा है, इसको और मारो, इसको और मारो। यूहन्ना आरिफ ने जब खुदा यीशु मसीह के कदमों में गिरा तो वो कहता है कि उसके पांव खालस पीतल के से थे और उसकी पोशाक सफेद ऊन की सी थी, और जब मैंने उसके चेहरे पर निगाह की तो उसका चेहरा ऐसा था जैसे तेजी के वक्त आफताब चमकता है। हालेलुया, जैसे तेजी के वक्त आफताब चमकता है। वो नूर है। उसने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, और ये नूर उसने फकत अपने तक महदूद नहीं रखा। उसने कहा कि लो अब तुम भी दुनिया के नूर हो। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। अब नूर को बुझना नहीं चाहिए। जी, नूर को बुझना चाहिए कि नहीं बुझना चाहिए? आइए कलाम मुकद्दस में से एक हम छोटी सी आयत देखेंगे और इस आयत को हम याद भी करेंगे। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत, थिस्सलुनीकी दूसरा यही है। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, रूह को ना बुझाओ। जी, क्या लिखा है? रूह को। आज इस आयत को हम सब याद करेंगे। ये आयत है, रूह को ना बुझाओ। बोलो, रूह को ना बुझाओ, रूह को ना बुझाओ, रूह
रूह को ना बुझाओ, एक दूसरे से कहे रूह को ना बुझाओ, रूह को ना बुझाओ। अगर रूह बुझ गई तो याकूब में लिखा है कि खुदा के ताबे रहो, इब्लीस को मौका ना दो, उसका मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तारीकी का हाकिम आएगा, वो दरवाजे पर दबका बैठा है, वो दरवाजे पर दबका बैठा हुआ है। खुदा ने कहा इनको कहा, खुदा ने कहा कि वो दरवाजे पर दबका बैठा है, कब उससे मौका मिलेगा और वो दाखिल होगा। गौर कीजिए, सुनिए, एक पर्सनैलिटी है जो दरवाजे के खुलने के इंतजार में है और वो दबका बैठा है कि कब दरवाजा खुलेगा और मैं इसके अंदर दाखिल होऊंगा। और एक पर्सनैलिटी है जो दिल के दरवाजे को आकर बड़ी आजिज़ी के साथ, मोहब्बत के साथ खटखटाता है? और उसके बारे में लिखा है कि अगर तू अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा तो वो तेरे साथ अंदर बैठ के खाना भी खाएगा। आमीन। सो इज्जत किसकी है? एक दिल के दरवाजे पर दबका बैठा है और दूसरा आके खटखटाता है। वो क्यों खटखटाता है? वो इसलिए क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। वो चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी उठे, हैं, उठे और ये अपने दिल के दरवाजे को खोले तो मैं इसके अंदर दाखिल होगा। हालेलुया। तो आज आप उठना चाहते हैं? आइए कहें, मैं उठना चाहता हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा, बस जागो और दुआ करो क्योंकि दिन बुरे हैं। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। इसलिए आज हमें कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है, उठ और मुनव्वर हो जा क्योंकि तारीकी जमीन पर छा गई है। तारीकी ने जमीन को घेरे हुए है और हमें गालिब आना है। कहे, हमें गालिब आना है। आए एक दूसरे से कहे, हमें गालिब आना है, हमें गालिब आना है, हमें गालिब आना है। तारीकी के हाकिम पर हमें गालिब आना है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है कि है हमें एक दूसरे को हलाक करने के लिए नहीं। खुदा यीशु मसीह ने हमें तालीम दी। उसने कहा कि तुमने सुना कि सबसे बड़ा हुक्म ये है कि अपने खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत से मोहब्बत रख। लेकिन मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। और वो नया हुक्म क्या था? वो नया हुक्म ये था कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। हालेलुया। सो ये खुदा यीशु मसीह का नया हुक्म है? यहूदी कहने लगे कि वो हुक्म जो मूसा ने दिए हैं आज ये हमें नया हुक्म देता है। तो मैं ये कहता हूं कि खुदा यीशु मसीह मोहब्बत का हुक्म देता है। आइए एक रेफरेंस देखेंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे। हालेलुया। मुकाशफा 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत से कलाम मुकद्दस से मुकाशफा, जो दर हकीकत खुदा यीशु मसीह का मुकाशफा है, उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए। उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहां तक कि मौत भी गवारा की। बस ए आसमानों और उनके रहने वालों, खुशी मनाओ, ऐ खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही वक्त है। इब्लीस क्या जानता है? कि मेरा थोड़ा सा वक्त है। बुजुर्गों को अगर कहा जाता है कि खुदावंद आने वाला है, तौबा कर ले, खुदावंद आने वाला, वो कहते हैं असी बुढ़े हो गए हैं, बचपन तो सौंदे आए हैं, हाले तक तो आया नहीं। सो कलाम मुकद्दस में लिखा है, हमारी जिंदगी कितनी है? हमारी जिंदगी पल भर की जिंदगी है। कितनी है हमारी जिंदगी? पल भर की। बुखारात की मानिद है, अभी नजर आई और अभी गायब। और खुदा के हसूर एक बरस क्या है? एक दिन के बराबर है। और अगर कोई बाबा 100 साल का हो जाए तो वो तो अभी खुदा की नजर में एक दिन का हुआ है। तो खुदा ने जो दानियल को 70 हफ्ते जिसके बारे में खुदा ने तालीम दी है, वो अभी तो वो पूरे नहीं हुए, लास्ट वीक चल रहा है। तो हमें क्या करना है? इब्लीस पर गालिब आना है। हालेलुया। हमें इब्लीस पर क्या आना है? गालिब आना है। किसके बाइस? कलाम मुकद्दस में लिखा है, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए। हालेलुया। ये गवाही का कलाम है क्या?
गवाही का कलाम ये है कि हमें हर रोज अपनी जिंदगी में बाइबल रीडिंग को अपने लाइफ स्टाइल बना लेना है। आमीन। हमें हर रोज कलाम को पढ़ना है। जब कलाम हमारे अंदर होगा तो फिर हम क्या करेंगे? कलाम के बायस और यीशु मसीह के जो खुदा का बर्रा है उसके खून के बायस हम गालिब आएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए एक दूसरे से कहे, उठ और मुनव्वर हो जा, उठ और मुनव्वर हो जा। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। मैं भी आपसे कहूंगा, उठ और मुनव्वर हो जा।